ضلع کرم میں بنکرز ختم کرنے لوگوں سے اسلحہ واپس لینے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ علی امی گنڈاپور کی زیر صدارت کے پی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ کے پی کو قیام امن کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کہا کرم میں قیام امن اولین ترجیح ہے صوبے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار بڑھانے میں سپورٹ کریں گے وزیر اعلیٰ علی امین نے کہا امن و امان کے لیے وفاقی حکومت تعاون کرے امن و امان پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے صوبائی ایپیکس کمیٹی اجلاس میں گورنر خیبر پختونخوا وزیر داخلہ محسن نقوی اور کور کمانڈر پشاور نے شرکت کی چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا آئی جی اور متعلقہ کابینہ ارکان بھی اجلاس میں شرکت کی اجلاس میں خیبر پختونخوا اور سیکیورٹی فورسز کے شہداء کے لیے فاتح خوانی اور خراج عقیدت پیش کیا گیا اجلاس میں ضلع کرم کے مسئلے کے پائیدار حل کے لیے طویل مشاورت کے بعد لائے عمل کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اجلاس میں کرم کے دونوں فریقین سے اسلحہ جمع کرنے کا متفقہ فیصلہ دونوں فریق تمام اسلحہ جمع کریں گے جس کے لیے فریقین حکومت کی ثالثی میں آپس میں ایک معاہدے پر دستخط کریں گے معاہدے میں رضاکارانہ طور پر اسلحہ جمع کرنے کے لیے دونوں فریق 15 دنوں میں لائے عمل دیں گے گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کے گورنر ہاؤس سندھوئی میں ملاقات ہوئی ہے ملکی صورتحال مدارس رجسٹریشن پارا چنار کے مسائل اور ان کے حل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں پارا چنار کے مسائل کے حل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جانے تینوں گورنرز نے عزم کا اعادہ کیا گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ مدارس ملک کے تعلیمی نظام کا اہم حصہ ہے ان کی مزید بہتری کے لیے مشترکہ اقدامات ضروری ہے تینوں گورنرز نے پارا چنار میں مستقل امن قائم کرنے کے لیے عمائدین اور جرگہ سے ملاقات پر اتفاق کیا گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ پارا چنار مسئلے کے مستقل حل کے لیے گورنر سندھ کی جاری کاوشیں قابل تحسین ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر ادویات کی پہلی کھیپ پارا چنار بھجوا دی گئی ہے ادویات کا انتظام صوبائی وزیر محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر خواجہ عمران نذیر کی نگرانی میں کیا گیا جبکہ محکمہ ایمرجنسی سروسز پنجاب نے خصوصی طور پر ایئر ایمبولینس بھجوائی ہے صوبائی وزیر صحت اور ایمرجنسی سروسز پنجاب خواجہ سلمان رفیع کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب اس مشکل وقت میں پارا چنار کے لوگوں کو ہر ممکن مدد فراہم کر رہی ہے ایئر ایمبولینس سروس کے ذریعے زندگیاں بچانے والی ادویات پارا چنار پہنچائی جا رہی ہیں پارا چنار سے ایئر ایمبولینس کے ذریعے بہتر علاج کے لیے مریضوں کو راولپنڈی بھی منتقل کریں گے واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک حکومت اور جے یو آئی کے درمیان مدارس بل پر پیش رفت وزیر اعظم نے معاملات کو جلد حل کرنے کی ہدایت کر دی کہا وزارت قانون اس معاملے کو حل کرنے کے لیے آئین اور قانون کے مطابق اقدامات کرے وزیر اعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا حکومت کی جانب سے مجھے ملاقات کی دعوت دی گئی وزیر اعظم سے دینی مدارس کے بل پر بات چیت ہوئی مدارس کے حوالے سے بل دونوں ایوانوں سے منظور ہوا تھا آئینی مدت گزرنے کے بعد بل پر اعتراض بنتا ہی نہیں تھا وزیر اعظم سے کہا دونوں ایوانوں سے بل منظور ہونے کے بعد ایکٹ بن گیا وزیر اعظم نے وزارت قانون کو عملی اقدامات کی ہدایت جاری کی ہے آئین و قانون کے مطابق ہمارا مطالبہ تھا اسے تسلیم کیا جائے گا وزیر اعظم نے معاملات کو جلد حل کرانے کی یقین دہانی بھی کرا دی ہے جمعیت علماء اسلام کا وفد موجود تھا وہاں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما وہ سب موجود تھے کہ دونوں ایوانوں سے بل منظور ہو جانے کے بعد اب وہ ایکٹ بن چکا ہے اگر صدر صاحب نے اس پر اعتراض کرنا ہے تو ایک اعتراض ہو چکا اور وزیر اعظم نے وزارت قانون کو فوری ہدایات جاری کی کہ اب قانون و آئین کے مطابق آپ فوری طور پر عملی اقدام کریں راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی نے جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی سمیت 12 ملزمان کی بریت کی درخواست خارج کر دی ہے 4 ملزمان کے بیرون ملک روانگی کی درخواست کو بھی مسترد کر دیا پروسیکیوٹر نے دلائل میں کہا کہ ملزمان کو سزا دینے کے لیے تمام شواہد بیانات دستاویزات موجود ہیں
9 मई GHQ हमला केस में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI समेत 12 मुलजिमान की मुकदमे से बरियत की दरख्वास्त खारिज कर दी। बानी PTI, अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, शरियार आफरीदी, फवाद चौधरी, कंवल शाहजब और उमर तनवीर भट्ट की दरख्वास्त बरियत खारिज कर दी गई है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने दरख्वास्त बरियत के खिलाफ दलाइल दिए। PTI के वकील फैसल चौधरी और मोहम्मद फैसल मलिक लीगल टीम के हमरा अदालत पेश हुए। अदालत का कहना था कि फर्द जुर्म आयद होने के बाद दरख्वास्त बरियत गैर मौसर है। अदालत ने 4 मुलजिमान की दस्तावेजात नामुकम्मल होने पर बैरून मुल्क सफर जाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। मुलजिमान मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज और उमर सती ने बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। PTI वकील फैसल मलिक ने दलाल देते हुए कहा कि फर्द जुर्म आयद करने के लिए नाकाबिल मवाद के बायस मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने दलाइल में कहा कि दस्तावेजी सबूत, शहादतें और इकबाली बयान और इंटरनल सिक्योरिटी रिपोर्ट्स भी अदालत को फराहम की गई हैं। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने मुलजिमान की बरियत की दरख्वास्त खारिज कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बाइस बनती है। वज़ीर-ए-आज़म की इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुतल्लिका इदारों को आपस के राब्ते मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की इंसानी स्मगलरों की सहूलतकारी में मुलव्विस FIA एहलकारों की निशानदही और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। 2023 के कश्ती उलटने के हादसे के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में इंतहाई सुस्त रवैये से काम लिया गया। जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म की इंसानी स्मगलिंग के मुतालिक जारी तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल करके ठोस सिफारिशात पेश करने की हिदायत कर दी। इजलास को यूनान कश्ती हादसे के और इंसानी स्मगलिंग के रोकथाम के हवाले से इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। यूनान कश्ती हादसे में जाँ भाग होने वाले 5 पाकिस्तानियों की शिनाख्त कर ली गई। दीगर की शिनाख्त का अमल भी जारी है। इंसानी स्मगलिंग के रोकथाम के हवाले से कानून साजी मजीद बेहतर बनाई जा रही है। गुजरांवाला में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस रेड बुक का इंतहाई मतलूब इश्तहारी मुलजिम गिरफ्तार। इश्तहारी मुलजिम मोहम्मद सुलेमान के खिलाफ 7 से ज़ायद मुकदमा दर्ज थे। मुलजिम ने गैंग के दीगर मुलजिमान की मदद से मुतासिरीन को पहले लीबिया, बरास्ता मिस्र और दुबई भिजवाया। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात FIA के 2 इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। एहलकारों ने ड्यूटी के दौरान मुसाफिरों को स्क्रीनिंग में गफलत बरती थी। 18 नौजवान फैसलाबाद एयरपोर्ट से बैरून मुल्क गए थे। इंसानी स्मगलर्स अब्दुल रऊफ अब्बासी, जुल्फिकार कमर जमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के कत्ल के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस जमाल महमूद ने कहा, बलोचिस्तान में सीनियर तरीन जज भी मारा गया, कुछ पता नहीं चला। असल बात यह है कुछ करने के ख्वाहिशमंद नहीं। दीगर 2 सूबों की निस्बत सिंध पंजाब में तफ्तीश इंतहाई नाकिस है। जस्टिस अथर में लला ने रिमार्क्स दिए कि 2017 से यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, जबकि रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ है। सारे इदारे सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हैं। जब तक रियासती इदारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में होंगे यही हाल होगा। लोगों को इदारों पर यकीन नहीं, लोग चाहते हैं सारे काम सुप्रीम कोर्ट करे। 21 दिसंबर को होने वाले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी एजेंडे का हिस्सा है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म हो रही है। जुडिशल कमीशन इजलास में आईनी बेंच का मामला भी एजेंडे में शामिल है। आईनी बेंच जुडिशल कमीशन की जानिब से 2 माह के लिए बनाया गया था। आईनी बेंच 5 नवंबर से 4 जनवरी 2025 तक के लिए बनाया था। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का कहना है, जब जरूरत पड़ेगी स्पीकर्स प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करेंगे। हम दरवाजे खोल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई आएगा, हमें जिसकी भी मिन्नत करनी पड़े मिन्नत करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का फैसला करने के लिए आखिरी वार्निंग दी है। कहते हैं लोकल बॉडीज इलेक्शन वक्त पर नहीं होते तो इख्तियारात के मसाइल होते हैं। अपोजिशन और हुकूमत को एक टेबल पर लाना मेरा काम है। जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट यूजिंग पार्लियामेंट एज अ टूल हम इस पे अपना रोल अदा करेंगे। ये जितने स्पीकर साहबान बैठे हैं, इन्होंने जब भी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह प्रोडक्शन ऑर्डर करेंगे और इम्प्लीमेंट भी कराएंगे। हमें जिसकी भी मिन्नत करना पड़ी, गवर्नमेंट की होगी या गवर्नमेंट के वज़ीरों की होगी या प्राइम मिनिस्टर साहब की होगी या चीफ मिनिस्टर साहबान की होगी या प्रेसिडेंट साहब की होगी, हम मिन्नत करेंगे कि जी आप भी कमेटी बनाएं। हम लोग दफ्तरों में बैठ के फैसिलिटेट करेंगे खामोशी से।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में बिलावल हाउस कराची में इजलास हुआ। सिंध और बलोचिस्तान के वज़ीर आला, पंजाब और केपी के गवर्नर्स ने शिरकत की है। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल हुआ। शुरका ने हुकूमत से मुज़ाकरात की रोशनी में पेशरफ से आगाह किया। शुरका ने वफाकी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ सूबों के साथ की जाने वाली यकीन दहानियों पर होने वाली पेशरफ पर अदम एतमाद का इजहार किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिदायत की कि वो हुकूमत के साथ अपने राबतों को मज़ीद तेज़ करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें रावलपिंडी डिवीजन की कारकर्दगी की जायजा रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम बड़े शहरों में अंडरपास के अतराफ और ओवरहेड ब्रिज के नीचे ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म भी दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मेन हॉल पर प्लास्टिक से बने ढक्कन लगाने, सफाई और अशियाए ज़रूरिया के दाख की मुसलसल मॉनिटरिंग करने, तजावुज़ात को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म करने का हुक्म दिया है। इस मौके पर मरियम नवाज का कहना था कि अवाम को गवर्नेंस में बेहतरी का वाज़ेह फ़र्क नजर आना चाहिए। अवामी अमूर में हर रोज़ बेहतरी लाई जाए। मरी के दाखिली रास्तों पर वेलकम टू मरी के साइन बोर्ड लगाए जाएं। रावलपिंडी शहर में ब्यूटिफिकेशन के लिए नुमाया इकदाम किए जाएं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने चकवाल के DPS में उम्दा लाइब्रेरी के क़याम को सराहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि हर कोई अपने दायरे इख्तियार से बाहर निकल जाता है। हर इदारा अपनी हदूद में काम करेगा तो मसाइल नहीं होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सूबे के साबिक IG से मुलाकात में पुलिस इस्लाहात समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत ने पुलिस को बजट, जदीद आलात और तरबियत देकर भरपूर मुस्तहकम किया है। अब पुलिस अपने अंदर भी गवर्नेंस और एहतसाब करे। सूबे के लोगों ने हमें मुंतखब किया है, उनकी खिदमत और हिफाजत करना हमारा फ़र्ज है। हर इदारे का अपना दायरेकार है। पुलिस को फ़ाल और खुद मुख्तारी होनी चाहिए। खबरनामे से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।